جو ہے فقہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریفات پڑھے تھے، اور اس کا غرض و غایت کیا تھا، اس کا موضوع کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج جو ہے ہم مصنف کے حالات جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز پھر کل سے جو ہے پھر کتاب شروع کریں گے۔ مصنف یعنی ہدایت کا مصنف، اس کتاب کا نام جو ہے ہدایہ ہے۔ یہ ہدایت النحو والی کتاب نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ تو نحو کا ہدیہ ہے نا، یہ تو ہدایہ ہے، فقہ کی کتاب ہے۔ یہ مصنف ہدایہ کے مختصر حالات، ان کے ہمارے علماء کے اقوال کے مطابق مصنف کا نام جتا علی تھا، اس کا کنیت جتا ابو الحسن تھا، لقب جتا برہان الدین تھا۔ سلسلہ نسب کچھ یوں بنتا ہے: الامام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی۔ الفرغانی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فرغان کے رہنے والے تھے، اور پھر فرغان میں ایک شہر میں مرغینان جو ان کا وطن تھا، اسی کی طرح منسوب کر کے اس کو مرغینانی کہا جاتا ہے۔ برہان الدین کیونکہ یہ جو ہے بہت بڑے اعلی فہامت ہے۔ ان کی ولادت جو تھی نماز عصر کے بعد 8 رجب 511 میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور ان کی وفات جو تھی وہ 14 ذی الحجہ 593 میں ہوئی، اور سمرقند میں جو ہے آپ کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا۔ ان کے صاحب ہدایہ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اساتذہ کرام سے علوم دینیہ کی تحصیل کی ہے۔ ان میں سے جو ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا نام ہے، شرح العقائد کا مصنف ابو حفص عمر النصفی، ایک تو علامہ تفتزانی ہے نا، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، عمر النصفی، جو ماتن، یعنی یہ ماتن جو ہے شرح العقائد کی ماتن جو ہے یہ بھی ان کے کیا تھے، استاذ محترم تھے۔ اس طرح جو ہے کیا صدر الشہید حسام الدین عمر بن عبدالعزیز، اسی طرح جو ہے وہ قوام الدین احمد بن عبد الرشید البخاری، یہ بھی جو ہے وہ کیا تھے، ان کے اساتذہ کرام میں سے تھے۔ ان کا علمی درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میں وہ مختصر سی مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے تعریف میں جو کلمات کہے ہیں، میں صرف وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ کان اماما فقیہا، وہ فرماتے ہیں کان اماما فقیہا حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاہدا ورعا بارعا فاضلا ماہرا اصلیا ادیبا شاعرا۔ دیکھو اتنے بڑے جو ہے اتنے بڑے القاب دیا ہے یہاں، تو ان کے لیے جو ہے یعنی مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، علوموں کا جامع بھی تھے، فنونوں کا ضابط بھی تھے، اور ساتھ میں زاہد، تقوادار، نیکوکار، فاضل، ماہر، اصولی، امام، فقیہ، حافظ القرآن بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو مختصر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے ہدایت کی تعلیم، یعنی ہدایت کی تعلیم انہوں نے کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کو خود اپنی ذاتی ان کا یہ خواہش تھی کہ میں فقہ میں جو ہے کوئی ایسا کتاب لکھوں جو لوگوں کے لیے جو ہے کیا ہو، مستند بھی ہو اور ساتھ میں جامع بھی ہو۔ تو انہوں نے حسن اتفاق سے ان کے ہاتھ جو ہے دو ہمارے حنفی مسلک کے دو کیا متون لگے، ایک مختصر القدوری، دوسرا جامع الصغیر۔ جامع الصغیر بھی لوگ جو ہے اس زمانے میں بہت جو ہے وہ کیا تھا، ابھی بھی مستند کتاب، اس طرح مختصر القدوری بھی، انہوں نے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی اپنا ہدایہ لکھ لیا۔ ہدایہ تو نہیں لکھا بلکہ ایک کتاب بدایت المبتدی جو ہے ایک نام لے گا، ایک بہت بڑی کتاب لکھی۔
और फिर उन्होंने जो है लेकिन इसमें मतन जो है वो जामे सगीर मुख्तसर कुदूरी का भी ले लिया गया है, लेकिन असली बुनियादी मतन जो था वो शरहुल हिदाया का वो जामे सगीर था, वो जामे सगीर था, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का एक किताब है। फिर उन्होंने कहा कह दिया कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दे दी तो मैं इंशाअल्लाह अजीज बिदायतुल मुब्तदी का शरह भी लिखूंगा। जब उन अल्लाह तबारक तआला ने उनको दे दिया, फिर उस उनकी शरह जो है किफायतुल मुंतहा लिखा गया, किफायतुल मुंतहा जो है लिखा गया। उन्होंने फरमाया, और वो 80 जिल्दों पर मुश्तमिल था। सुभान अल्लाह, 80 जिल्दों पर। और 80 जिल्द कौन पढ़ सकता है, कौन पढ़ सकता है? तो उन्होंने इरादा किया कि मैं ऐसा करूंगी कि किफायतुल मुब्तदी की जो है वो इनका खुलासा लिखूंगी, फिर उनका खुलासा लिखूंगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको ये जो है तौफीक दी कि उसका खुलासा निकल जो हिदाया के नाम में, के नाम से जो है हमारे और आप लोगों के हाथों में मौजूद है। तो क्या क्या कर दिया, तो इसी तरह ये हिदायत जो है जामुल सगीर का, बिदायतुल मुब्तदी का, किफायतुल मुंतहा, यानी इन सब का खुलासा है। और इमाम हिदायत जो है ये किसी और का मसलक जिक्र नहीं करते, बल्कि नहीं जिक्र करते हैं, यानी ये हनफी किताब है। और हमारा बहुत बड़ा जो है इसका क्या है, बहुत बड़ा बुनियाद है साहिब किताब। इनकी 4 जिल्दें हैं, मुझे तो सिर्फ किताब तहारत दे दिए गए हैं। इनका दूसरा पहला जिल्द जो है वो किताब तहारत के मुतालिक है, फिर दूसरा जिल्द जो है किताब तलाक, तीसरा किताबुल बुयू, चौथा जो है मेरा ख्याल किताबुल फराइज की कुछ इसी तरह है। बहरहाल हमने भी 2 पढ़े हैं, क्योंकि बनात का निसाब जो है वो सिर्फ 2 है, किताबुल बुयू नहीं है इसमें। अब हिदाया की किताब में खुसूसियत, उनका तर्ज और तरीका। हिदाया की किताब में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ खास बातें, कुछ आदतें जो है मलहूज की है। साहिब हिदाया ने अनीने अल्लामा मिरगनानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है हिदाया की किताब में ये आदत मलहूज किया है कि वो जो है कि जब भी वो मुख्तलिफ फुक़हा कराम के अक़वाल ज़िक्र करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, असह कौल को, जो उनके नज़दीक हो, असह कौल को तमाम अक़वाल में से पहले कौल पर ज़िक्र, पहले नंबर पर ज़िक्र करते हैं, और दलाइल के एतबार से आखिर में ज़िक्र करते हैं। जब वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अक़वाल ज़िक्र करते हैं, तो सबसे मुफ्ताबिही कौल जो है, उनके नज़दीक जो मुफ्ताबिही कौल होता है, वो कौन ज़िक्र करता है? वो पहले नंबर पर ज़िक्र करते हैं। लेकिन दलाइल के एतबार से जो है मुफ्ताबिही कौल की दलील जो है वो आखिर में ज़िक्र करें, ताकि ये दलील जो है दूसरे लोगों के लिए जो है वो क्या हो जाए, ये जो है दूसरे उसके लिए जो है वो जवाब भी की शक्ल में भी मौजूद हो। और हमेशा जो है और जब उनकी किताब में क़ाला रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा हुआ होता है, तो फिर समझ लो कि ये इनका अपने ज़ात मुराद है, अपना अपना ज़ात मुराद है। क्यों? अब सवाल होता है कि अपने लिए क़ाला रज़ी अल्लाहु अन्हु कहना, ये तो जो खुद पसंदी है ना, ये तो तकब्बुर है या? तो कहते हैं कि नहीं, असल में ये था कि वो अपने लिए, जब वो हिदाया लिख रहा था, तो उन्होंने अपने लिए अल अब्दु ज़ुआइफ, कमजोर बंदा, अल अब्दु ज़ुआइफ का लक़ब लिखा था। लेकिन जब उनके क्या नाम है, उनके शागिर्द जब उनके वफात के बाद उसको जमा करना चाहा, उनको तरतीब देना चाहा, उनको नशर करना चाहा, तो अब्द ज़ईफ की बजाय क़ाला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन लोगों ने तब्दील की। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब वो दलील अक्ली को जिक्र करते हैं, तो अक्सर कभी कभार दलील अक्ली को जिक्र करते हैं, तो फिर अल फिक़्हु फ़ीही कज़ा जिक्र करते हैं, अल फिक़्हु फ़ीही कज़ा जिक्र करते हैं। और जब भी कहते हैं बीमा तलौना, तो इसका मतलब यह है कि ये आयत पहले गुजर चुका है, ये आयत तो पहले गुजर चुका है। इसी तरह और भी जो है बहुत सारे वो है, जब उनके यहाँ जो है अल मुख्तसर लफ्ज जब उनके उसमें आते, तो फिर इससे मुराद जो है अल मुख्तसरुल क़ुदूरी होता है, मुख्तसरुल क़ुदूरी होता है। लेकिन जब वो अल असल का लफ्ज लाते, तो फिर इससे मालूम होगा कि ये वो जामु साइर होता है, क्या है ना, मबसूत वो भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की कुल 6 किताबें हैं, इनमें से अल मबसूत वो असल है, उन वो मुराद है, वो मुराद है।
फिर इसी तरह जो है वो क्या करते हैं, जब भी वो अक्ली की बात हो, जब भी वो अक्ली दलील के बाद एक दूसरा अक्ली दलील लाते हैं, तो उस दूसरी दलील से पहले दलील के लिए लीमा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लीमा का लफ्ज जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जब इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब वो क्या करते हैं, जब किसी मसले में या किसी इबारत में इख्तिलाफ होता है, तो वो कह देते हैं वफिल जामे सगीर वफिल जामे सगीर। और जब कालू जिक्र करते हैं तो इससे पक्का मालूम होता है कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इस मसले में अगरचे वो इख्तिलाफ जिक्र नहीं, लेकिन अक्सर इख्तिलाफ जिक्र किया है, लेकिन वो कह लेते हैं कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इस तरह और भी नज़ीरें मौजूद है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम इबारतों के साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। ये कोई सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है।